ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC CGL, CHSL और ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਕਲਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਕਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਹੰਟਰ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੋ ਬਿਡਨ ਜੋ ਕਿ USA ਦੇ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਹੰਟਰ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗਸ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ KN ਭੰਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, KN ਭੰਡਾਰੀ। ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਝੁੰਪਾ ਲਹਿਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ। ਦ ਟੈਰੀਬਲ ਹੌਰੀਬਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮੇਘਨਾ ਪੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਸਟ ਡਾਇਵਰਸ ਫਿਊਚਰਸ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡੇ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਥੀਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਡੈਪਟਿੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਕੇਅਰ ਇਨ ਨਿਊ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਵੌਇਸਿਸ ਡੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਥੀਮ ਰਹੀ ਵਨ ਵਰਲਡ ਮੈਨੀ ਵੌਇਸਿਸ। ਵਰਲਡ ਵੌਇਸ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਡੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਕਿਪ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੇਵ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਐਲਿਸਟਾ, a trading company based in UAE, United Arab Emirates। UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਲਿਸਟਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਇਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ, MS ਧੋਨੀ ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਇਨਾ ਇਕੱਠੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਲਿਸਟਾ ਦਾ।
ठीक है जी। इन्हां दी बुक के बारे आपां कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी, बिलीव इंपोर्टेंट बुक है, याद रखांगे, ठीक है। इस तो इलावा ऑप्शंस दे विच दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर नूं किन्ना किन्ना दे ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। रिसेंटली दीपिका पादुकोण नूं लेविस दे ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी। श्रद्धा कपूर नूं आई थिंक राजस्थान की कंपनी सी वेला कोसा समथिंग, उसके ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी, ठीक है जी। बाकी दो ऑप्शंस न्यूज़ दे विच ने। सब तो पहले विराट कोहली नेम्ड विजडन एल्नामैक ओडीआई प्लेयर ऑफ 2010। बेन स्टोक्स इंग्लैंड दे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सचिन तेंदुलकर नूं ओडीआई क्रिकेटर 90s, कपिल देव नूं 80s। सर विवियन रिचर्ड 1970s और मुतीहा मुरलीधरन नूं 2000s, ठीक है। ये न्यूज़ में थोड़ा बाइफरकेट करके समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सब तो पहले ओडीआई क्रिकेटर, विजडन ओडीआई क्रिकेटर की अगर आप गल करिए, इन्होंने की करा डिकेड्स के लिए अवार्ड्स इकट्ठे अनाउंस किए हैं, ठीक है। 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, ठीक है। 70s के लिए मुतीहा मुरलीधरन, सॉरी 70s के लिए नहीं सी, 70s के लिए विवियन रिचर्ड, 80s के लिए कपिल देव, 90s के लिए सचिन तेंदुलकर, 2000 के लिए मुतीहा मुरलीधरन, 2010 तक के लिए विराट कोहली, ठीक है जी। इस तो इलावा क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है, एक अलग अवार्ड बेन स्टोक्स को दिता गया, इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर, ठीक है जी। इसके अलावा रश्मिका मंदाना कौन ने? साउथ फिल्म एक्ट्रेस ने, साउथ इंडस्ट्री के फिल्म एक्ट्रेस। इन्होंने ब्रांड एंबेसडर बनाया गया मैकडॉनल्ड इंडिया द्वारा ब्रांड एंबेसडर, ठीक है जी। नेक्स्ट है आरबीआई हैज सेटअप अ रेगुलेटिंग रिव्यू अथॉरिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है ये। रेगुलेटिंग रिव्यू अथॉरिटी एक नवी पोस्ट कह सकते हैं क्रिएट की है, एक अथॉरिटी बनाई है रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, कि बेसिकली जो रेगुलेशंस ने, जो पुराने टाइम की रेगुलेशंस इशू की गई सी, उन्होंने रिव्यू किया जाएगा, सर्कुलर्स नू या रिपोर्टिंग सिस्टम्स नू रिव्यू किया जाएगा। एक साल की एक अथॉरिटी बनाई है, ठीक है, जिसका बाद टैनूर इंक्रीज किया जा सकता है। आरबीआई ने बनाई है। तो आरबीआई ने जो यह अथॉरिटी बनाई है, इसके हैड कौन अपॉइंट किए गए ने? एम राजेश्वर राव, जो कि डेप्यूटी गवर्नर ने आरबीआई दे विच इन्हां नूं ही RRA अपॉइंट किया गया, रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, ठीक है जी। इस तो इलावा शक्तिकांत दास गवर्नर ने आरबीआई दे, ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है नाम। बाकी दो डिप्टी गवर्नर MK जैन, माइकल डी पात्रा ने, और एक पोस्ट आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की खाली चल रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्बन रिमूवल इनिशिएटिव रीस्टोर फंड। बेसिकली आप डिस्कस करें कई बार जीरो कार्बन के रिलेटेड, कि कार्बन एमिशन है जो इसनों कंट्रोल करने डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के वाल प्रमोट किया जा रहा है। उसी दे विच एक कंपनी ने कार्बन इनिशिएटिव नूं खत्म करने के लिए रीस्टोर फंड, स्पैशल कार्बन रिमूवल इनिशिएटिव रीस्टोर फंड की शुरुआत की है। किहड़ी कंपनी? एप्पल। फर्स्ट ऑप्शन एप्पल द्वारा इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई, ठीक है जी। सिंपली वन लाइनर दे विच याद रखें। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी किया गया। किसने जारी किया? इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट ने फेसबुक के नाल मिलकर, इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट ने फेसबुक के नाल मिलकर इसनूं जारी किया। तो इस दे विच इंडिया की रैंकिंग रही 49। इंडिया किनवें नंबर पर रहा? 49th नंबर पर रहा, ठीक है। इत्थे एक क्वेश्चन काफ़ी जो चांसिस काफ़ी ज़्यादा ने पूछे जाते, वह की है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया है जो इनकलूसिव इंटरनेट इंडेक्स दे विच
49th नंबर ते रहा है, पर इंडिया दे नाल एक होर कंट्री 49th नंबर ते रही, वो केड़ी कंट्री? क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछा जा सकता है। तो वो केड़ी कंट्री है? वो कंट्री है थाईलैंड। ठीक है जी, डिटेल इत्थे पूरी लिखी हुई है। इंडिया 49th रैंक ते रहा है 120 कंट्रीज़ दे विचों। रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट फेसबुक के नाल मिल के इंडिया अपना रैंक शेयर कर रहा है थाईलैंड के नाल, यानी कि इंडिया और थाईलैंड दोनों 49th नंबर पर रहेंगे। ठीक है, टॉप किया इसनूं स्वीडन ने, सैकेंड नंबर पर USA, थर्ड नंबर पर स्पेन रहे। ठीक है, स्वीडन कैपिटल करेंसी, स्पेन कैपिटल करेंसी पूछी जा सकती है। स्टॉकहोम है, करेंसी क्रोन है। स्पेन की गल करते हैं, मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। ठीक है, तो इस तरीके नाल जिथे भी कोई कंट्री न्यूज़ दे विच रहिंदी है उसदे कैपिटल करेंसी जरूर याद रखा करो। ठीक है, रिविजन करते रहोगे, ईजिली याद हो जाएगियां, कोई वड्डी गल नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक? रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट सब सहारन अफ्रीका, बेसिकली जो सब सहारन अफ्रीका रीजन है इसके लिए जारी की जाती है। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी किया गया और अनाउंस किया गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड की स्लोएस्ट ग्रोथ रही है इस रीजन के विच, यानी कि इस रीजन के विच जो इलाका आता है, जो कंट्रीज़ आंदियां ने, उन्होंने जो ग्रोथ है अफ्रीकन कॉन्टीनेंट है उसके जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा घट रही है 2021 की। ठीक है, डिफरेंट कारण ने कि इतने कोविड-19 कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तो इलावा वैसे भी गरीब देश ने, क्योंकि इबोला वायरस वर्गे डिफरेंट वायरस कंटीन्यूसली इतने हिट करते रहते हैं। ठीक है, जिस करके इतने के लोगों लोग वैक्सीन के उत्ते पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता। ठीक है जी, तो इस करके ग्रोथ काफ़ी घट है। अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा वन लाइनर दे विच कि रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट सब सहारन अफ्रीका रीजन के लिए किसने जारी की है? तो इसनूं जारी किया गया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF द्वारा, IMF। ठीक है जी, इस तो इलावा इन्हों के रिलेटेड फैक्ट की अगर आप गल करते हैं, काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। IMF 190 मैंबर कंट्रीज़, IMF हैडकुआटर वाशिंगटन DC और IMF दे हैड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, रिसेंटली CHSL के एग्जाम के इसके हैड पूछे गए हैं। ठीक है, SSC CHSL के एग्जाम चल रहे हैं और SSC CHSL के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन काफ़ी ईजी पूछे जा रहे हैं। GK की अगर आप गल करते हैं 25 के विचों तकरीबन 15 तो लैके 20 क्वेश्चन कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ईजी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़े जो कोई भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी गल है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन के रिलेटेड फैक्ट्स भी इंपोर्टेंट बननगे, आप काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू फंड वैक्सीनेशन फॉर 2.5 लाख पीपल इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़? कि जिहड़ी कंट्रीज़ दे विच लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ जिन्होंने कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, इन्हों 2.5 लाख लोगों वैक्सीनेशन फंड करेगी किहड़ी कंपनी? गूगल ने अनाउंस किया कि यह फंडिंग के लिए पैसा देगी, फंडिंग के लिए वैक्सीनेशन के लिए पैसा देगी कोविड-19 की। ठीक है जी, वैसे भी इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, आप एक इनिशिएटिव डिस्कस किया WHO का। WHO का जो इनिशिएटिव सीगा कोवैक्स, जिस दे अंदर कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है पुअर कंट्रीज़ में, वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड? ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है वूमेंस कैटेगरी दे विच। वूमेंस 49 kg कैटेगरी दे विच 119 kg लिफ्ट करन दा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप ताशकंद दे विच। ਆਪਾਂ डिस्कस किया कि एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप कित्थे ऑर्गेनाइज की जा रही है? ताशकंद के विच ऑर्गेनाइज की जा रही है, ताशकंद उज्बेकिस्तान दे विच। और 119 किलो वजन चक के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है वूमेंस 49 kg कैटेगरी दे विच इंडियन परसन द्वारा। तो कौन ने? मीराबाई चानू वेट लिफ्टर ने।
ठीक है जी। डायरैक्टली मीराबाई चानू किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग तो बिलोंग करते हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले सीनियर एशियन रैसलिंग चैंपियनशिप, सीनियर एशियन रैसलिंग चैंपियनशिप कितने ऑर्गेनाइज की जा रही है, अलमत कजाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। इंडिया ने टोटल 12 मैडल जिते जिदे विचों 5 गोल्ड मैडल जिते। मेल कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ सिंगुलर गोल्ड मैडल रवि कुमार दहिया। फीमेल कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ 4 मैडल विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सरिता मोर और दिव्या काकरम द्वारा। विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सरिता मोर, दिव्या काकरम। ठीक है जी। यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। सोनम मलिक बिकम्स इंडिया यंगेस्ट फीमेल रेसलर टू क्वालीफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। सोनम मलिक सिर्फ 18 साल की एज है, इन्हों की इंडिया के यंगेस्ट फीमेल रैसलर बन चुके हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। ठीक है। आप याद होएगा आप डिस्कस किया फर्स्ट वूमेन इंडियन वूमेन जिन्होंने क्वालीफाई किया विनेश फोगाट बने सी। ठीक है। उस तो बाद होर जन्हों ने भी किया क्वालीफाई। हुण सोनम मलिक यंगेस्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट इंडियन पैडलर पायस जैन सैकेंड स्पोर्ट ते आ चुके हैं ITTF अंडर 17 वर्ल्ड रैंकिंग्स दे विच। इंटरनेशनल टेबल टैनिस फैडरेशन पायस जैन किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, टेबल टैनिस तो बिलोंग करते हैं। टेबल टैनिस की अंडर 17 वर्ल्ड रैंकिंग्स दे विच दूसरे नंबर ते ने, चाइना के युआंगचू चैन तो बाद। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बीवरेज बिजनेस इन इंडिया एंड साउथ एशिया। टाटा जो कंपनी है, टाटा कंपनी के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बीवरेज बिजनेस है, यानी कि जो ड्रिंकिंग बिजनेसिस कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बीवरेजिस, इस दे बिजनेस के लिए इंडिया और साउथ एशिया के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं पुनीत दास। फर्स्ट ऑप्शन पुनीत दास नूं प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के विच ने डिस्कस करांगे। 2 ओबीचुरीज भी ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले क्रिश्चियन वॉरमूथ फर्स्ट वूमेन सैक्रटरी अपॉइंट किए गए हैं US आर्मी के। इंपॉर्टेंट फर्स्ट वूमेन सैक्रटरी ऑफ US आर्मी क्रिश्चियन वॉरमूथ। मराठी फिल्म पुगलिया एक मराठी फिल्म है जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड जीते। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड किथे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फैसटीवल दे विच, जिसनूं डायरैक्ट किया गया सी विनोद सीम पैटर द्वारा एक मूवी डायरैक्ट की गई पुगलिया, जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड जीते। ठीक है। जिस तरीके नाल बाफ्टा याद रखांगे, नोमैडलैंड। ठीक है। बाफ्टा का लास्ट ईयर की अगर आप गल करते हैं 1917 मूवी। ठीक है। इस तरीके नाल इंपॉर्टेंट बननगे। ठीक है। कुछ टाइम बाद ऑस्कर्स भी आप डिस्कस करांगे। रेडियोलॉजिस्ट ककराला सुब्बा राव, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। रंजीत सिन्हा फॉर्मर CBI डायरैक्टर, इन्हां दी डेथ हो गई है। अहमद हुसैन लाला ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट फुटबॉलर, इन्हां दी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज, तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बननगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कहांगे कि न्यूज़ दे विच सीगे। इस तो इलावा हालांकि ओबीचुरीज होर भी सीगे, एक्टर सीगे तमिल इंडस्ट्री के, उन्होंने डेथ हुई सी, विनोद आई थिंक कुछ नाम से उन्होंने, पर अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट बननगे, याद रखेंगे। रमन गोयल अपॉइंटेड एज फर्स्ट वूमेन मेयर ऑफ बठिंडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पंजाब की बठिंडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले वूमेन मेयर रमन गोयल अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड अ ब्रिक्स सेमिनार ऑन मिसयूज ऑफ इंटरनेट फॉर टेररिस्ट पर्पसेस एंड रोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स इन टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशंस। बेसिकली ब्रिक्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की किसने, NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। ठीक है। की कि ब्रिक्स का सैमीनार किया किस दे लई कि
इंटरनेट है उसका किस तरीके नाल मिसयूज हो रहा है टैररिस्ट परपज़ दे लई। ठीक है, इस मीटिंग नूं हैड किसने किया? इंडिया वालों अजय कुमार भल्ला, इंडिया के होम सैक्रटरी, इंडिया के होम सैक्रटरी द्वारा इस मीटिंग नूं हैड किया गया। ठीक है जी, ब्रिक्स के रिलेटेड याद रखांगे, ब्रिक्स का जो 13th एडिशन है समिट का, इंडिया लवे प्रेजिडेंसी है। ठीक है, 13वां समिट होएगा, इंडिया लवे प्रेजिडेंसी है। थीम है ब्रिक्स एट द रेट 15, ब्रिक्स एट द रेट 15 कोऑपरेशन ग्रोथ वगैरह थीम है। स्टार्टिंग याद रखांगे ब्रिक्स एट द रेट 15। किनवा एडिशन है मीटिंग का? 13th एडिशन है। ठीक है जी, प्रेजिडेंसी किस दे लवे है? इंडिया लवे है। इस तो इलावा चार ऑप्शंस, चारों इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ने, चारों न्यूज़ दे विच ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले रमेश पोखरियाल निशांक, रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया डूरोकिया, डूरोकिया प्रोडक्ट सीरीज है डूरोकिया की, एक लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट है जिसनों IIT हैदराबाद द्वारा बनाया गया। IIT हैदराबाद द्वारा वर्ल्ड का पहला अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट डूरोकिया लॉन्च किसने किया? रमेश पोखरियाल निशांक ने। मनसुख लाल मंडाविया पोर्ट्स मिनिस्टर, इन्होंने रोपैक्स जेटी सर्विस की अनाउंसमेंट की है। रोपैक्स जेटी सर्विस किस दे दी? कैनाली, भद्रक डिस्ट्रिक्ट, तालाचुआ, केंद्रप्पा डिस्ट्रिक्ट, किथे? उड़ीसा दे विच। बेसिकली रिवर का नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, धमरा। धमरा रिवर किथे लोकेटेड है? उड़ीसा दे विच लोकेटेड है। धमरा रिवर के उत्ते रोपैक्स जेटी सर्विस की शुरुआत की गई। मनसुख लाल मंडाविया पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर ने। राज्य सभा MP ने गुजरात तो। हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने, इन्होंने ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत की है। ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत किसने की? हरदीप सिंह पुरी ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, राज्य सभा MP उत्तर प्रदेश तो। ठीक है जी, नेक्स्ट है विद विच कंट्री इंडिया कंडक्टेड 8th एडिशन ऑफ मिलिटरी एक्सरसाइज खंजर। मिलिटरी एक्सरसाइजिज के विचों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम के विच। ज़्यादातर एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है मिलिटरी एक्सरसाइजिज। इंडिया जापान की एक्सरसाइज, इंडिया USA की एक्सरसाइज, इंडिया फ्रांस की एक्सरसाइज, डायरैक्टली क्वेश्चन न्यूज़ के विच पूछे जाते हैं। खंजर डायरैक्टली पूछा जा सकता है, खंजर एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के नाल कंडक्ट करता है? तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के नाल इंडिया खंजर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। 8वां एडिशन परफॉर्म किया गया किथे? किर्गिस्तान दे विच, किर्गिस्तान बिश्केक दे विच इसनूं परफॉर्म किया गया। ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने तीनों कंट्रीज़ के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर ने न्यू दिल्ली की विजिट की इन्होंने, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के S जयशंकर के नाल मुलाकात की। ठीक है, बेसिकली इंडिया और मालदीव के जो रिलेशनस ने काफ़ी अच्छे ने इंटरनेशनल लैवल के उत्ते। इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है मालदीव के विच, इस करके इंपोर्टेंट बनेगा। फॉरेन मिनिस्टर का नाम अब्दुल्ला शाहिद। फ्रांस हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर कोऑपरेशन ऑन इसरो गगनयान मिशन। इस दे रिलेटेड आप कल भी हल्की जी गल की सी कि फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर से इंडिया की विजिट से सीगे, जीन वैक्स आप कुछ डिस्कस किया सी, याद होएगा। ठीक है, इन्होंने की किया? इन्होंने पहले तो पार्टिसिपेट किया रायसीना डायलॉग दे विच। उस तो बाद ये बेंगलुरु इसरो की जो कहांगे हैडकुआटर है उत्थे विजिट की इन्होंने, और जो गगनयान मिशन है उसदे लई एग्रीमेंट साइन किया। गगनयान मिशन जो इंडिया का मैंड मिशन है, भेजा जाएगा स्पेस दे विच। इस मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स ने जिन्होंने ट्रेनिंग लीती है, कितों लीती है? रशिया तो लीती है। ठीक है, जो मेडिकल सप्लाईज के रिलेटेड डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है वह कितों लीती है? वह फ्रांस तो लीती है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसी दे नाल डिफरेंट होर कोऑपरेशन गगनयान मिशन के लिए कौन करेगा? फ्रांस करेगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सामान वगैरह लेके जाना है तो उसकी पैकिंग किस तरीके नाल होएगी, उसनों किस तरीके नाल लेके जाया जाएगा, वो सारे वर्क कौन करेगा, फ्रांस करेगा। नेक्स्ट, यूएसए और इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करनगे। हाइड्रोजन टास्क फोर्स कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी, हाइड्रोजन समिट ऑर्गेनाइज किया गया सी, ठीक है, याद होएगा आप डिस्कस किया सी, जिस दे विच जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने उन्होंने पार्टिसिपेट किया सी, धर्मेंद्र प्रधान ने। उसी मीटिंग दे विच अनाउंसमेंट की गई है यूएसए द्वारा, यूएसए के डिप्टी सैक्रटरी ऑफ एनर्जी डेविड एम टर्क द्वारा, कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करेगा यूएसए और इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी। थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेटेड सैंगकेन फेस्टिवल विच इज ऑल्सो नोन एज वाटर फेस्टिवल इन विच स्टेट। बेसिकली थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जो, इसने सैंगकेन फेस्टिवल, डायरैक्टली फेस्टिवल पूछा जाता है कि सैंगकेन फेस्टिवल कित्थे ऑब्जर्व किया जाता है, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वाटर फेस्टिवल के नाम नाल भी जानिया जाता है, परफॉर्म किया गया, याद रखेंगे। इस तो इलावा दो इंपोर्टेंट न्यूज़, जम्मू कश्मीर ने भी शिकारा रेस रैली शुरू की है। शिकारा रैली, शिकारा एक बोट रेस है जो कि दल लेक दे विच ऑर्गेनाइज की गई। डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा दल लेक कित्थे लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर दे विच। टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है जी। एमपी बेसिकली इंप्लीमेंट करेगा 5-fold स्ट्रैटेजी। बेसिकली कोविड-19 के लिए 5-fold स्ट्रैटेजी कौन फॉलो करेगा, एमपी फॉलो करेगा। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, फॉलो कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेट, ठीक है जी। सिंपली याद रखेंगे। बाकी होर डिफरेंट कैंपेन्स एमपी के इंपोर्टेंट बनेगे, किल कोरोना कैंपेन है, ठीक है, या होर भी मास्क ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ कैंपेन ਸੀਗੇ एमपी ਦੇ, काफ़ी डिफरेंट कैंपेन्स कोविड-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ एमपी ने शुरू किए सी, सारे इंपोर्टेंट बनणगे, ठीक है जी। अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।